जी starting trip for Giethoorn, small beautiful, most beautiful village in Holland. ये अभी ये पूरा ग्रुप जो है ये टूर बुक कराया था, ये 79 यूरो होता है और एम्स्टर्डम मेन सेंट्रल स्टेशन के नीचे ऑफिसर नेट के ज़रिए बुक किया था। 79 यूरो इसका नजराना है और ये अभी बस की तरफ ले जा रहे हैं। तकरीबन 1.25 घंटे की ये बस की मुसाफत है। वो सामने खड़ी है, 3 मिनट लगते हैं, वहाँ से ट्रिप स्टार्ट होगा। और इंशाल्लाह बड़े सालों से एक ड्रीम था कि गैथोर्न देखूं, लेकिन मौका नहीं मिल सका। बहुत ही खूबसूरत विलेज है ये, सेम वीनस के वीनस समुंदर में है और ये लहरों के दरमियान है जो मीठे पानी की होती है। फूलों से लदा फदा ये शहर, उसको इंशाल्लाह आप नज़ारा करेंगे। ये जी बस के पास पहुंच गए हैं, इस बस के ज़रिए जाएंगे। चलने के बाद हम लोग यहाँ पे रुके हैं। ये रेस्टोरेंट है, इस तरफ समुंदर है और ये दूसरी तरफ जो है वो लेक है। अभी इसकी छत पे जाएंगे तो वहाँ से वो मंज़र जो है वो नज़र आएगा। बड़ी ही इन लोगों ने पानी के लिए एक चीज़ जो मुझे बड़ी मुतासर करती है, किसी जगह भी आप जाएंगे 50 मीटर भी सफ़र नहीं कर सकते कि आपको कोई नदी नाला ना मिले। कोशिश मैंने इनकी यही देखी है कि भी कतरा पानी जो है वो समुंदर में ज़ाया ना हो। जैसे कि हमारा मुल्क जो कि पानी ग्लेशियर पहाड़ों से माला माल, लेकिन खेतों में पानी लगाने के लिए गर्मियों में पानी नहीं मिलता। तकरीबन 2 घंटा 30 मिनट की राइड के बाद हम गैथोर्न पहुँच चुके हैं। बस रुकेगी और फिर यहाँ 4 घंटे लेंगे, 1 घंटा कश्ती में सैर कराएंगे।
ये जी अब कश्ती का टूर जो है शुरू हो गया बोट में। ये तकरीबन 45 मिनट का टूर होगा। ये जो कैनाल है इस गांव में, जो दुनिया के खूबसूरत तरीन हेरिटेज विलेज में Giethoorn. On our left side, we're sailing past a typical Dutch snack bar, and this snack bar is called Geithoorn, Goathorn. The snack bar itself is not so important, but it's the name, because the first people who came to live here found the skulls of dead goats on the lake, so they called the village Goathorn, Geithoorn. But through the dialect here in the area, it changed into Giethoorn. And also on the left side you can see a small example of the official flag of Giethoorn. It's the red, yellow and blue one. The colors are from the province we're in right now, Overijssel. And if you look closely you can also see the skull of a goat on it as a symbol for Goathorn. फूल जो है वो सारे खुशक हैं क्योंकि सर्दी है, तो लेकिन सब्ज़ा और इसकी अपनी एक इनफरादियत है इस गांव की। और हर घर का जो बंदा है उसकी अपनी कश्ती है जिसने अपने घर तक आना है। And here on the left side we're sailing past a restaurant, and this restaurant is called Het Vonder. And Het Vonder is the name of the wide bridges here in the center village, because we can take them out of the water if we want. For example, sometimes in the winter it's so cold here in the village, we can go for ice skating in the main canal. And then all the boats have to be removed, so we take the bridges out of the water to park the boats behind the houses and the restaurants. And the last time it happened was exactly 1 year ago, December 2022. आज बहुत दिनों बाद सूरज भी निकला है। जो 5वां दिन हो गया नीदरलैंड में, और आज पहले दिन सूरज देखा। ये आगे वो झील आ रही है जिसके किनारे ये विलेज आबाद है। Here on the left side you can see all the brown water plants, and it's called reed. That's the material that people use for the rooftops inside the center village.
take a look to your front, you can see a flat boat besides the water. And this boat is called a ponton. And these are the boats that people use to bring their building materials towards their houses in the center village, because they can't reach it by using a car. So everything has to be done by boat here. These were little barns in the past that people used to sell their milk to a collector who came twice a week through the center village with a big boat. He collected the full cans of milk and left some empty ones with some money inside behind. It was the way of earning some money here in the village. Here on the left side we're sailing because they're real cows, so be careful. जी आखिरकार हम गीतहोरन में पहुंच गए हैं और यहाँ बस ने उतारा और ये रेस्टोरेंट है, फर्स्ट रेस्टोरेंट, और भी इसमें रेस्टोरेंट हैं। इसी में ये बोट का टूर भी शामिल होगा। इस कस्बे की एक मुनफरद हैसियत है कि ये सारे का सारा ये बोट है जो विज़िट कराती है। और ये जितने मकान बने हैं कोई 200 से 250 साल पुराने, जब ये कस्बा वजूद में आया था। और इसकी बैक पे लेक है बहुत बड़ी, जो इसके इन गलियों और सड़कों को पानी देती है। यानी यहाँ पे ये बाहर ये एक रास्ता है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं, कोई पार्किंग नहीं, कोई गाड़ी नहीं जा सकती किसी भी घर तक। सिर्फ आप बाहर पार्किंग में लगा के तो घरों में जा सकते हैं अपने। दुनिया का बड़ा ही मुनफरद ये कस्बा है गीतहोरन विलेज। ये गिफ्ट शॉप है। यहाँ पे यही गलियाँ जो हैं ये पानी के ज़रिए, हर एक अपना गैरेज है जिसमें अपनी बोट खड़ी करता है। ये रेस्टोरेंट प्लस गिफ्ट शॉप। ये जितने भी पुल बने, इससे जो परली तरफ वाला इलाका है वो प्राइवेट है क्योंकि उनकी अपनी एक रिहाइश है। बस इसी पे जो टूरिस्ट आते हैं इस रास्ते में घूम सकते हैं या टूर ले सकते हैं इसमें बोट में। ये भी एक रेस्टोरेंट है, 1615 में वजूद में आया। ये इसका दूसरा बड़ा रेस्टोरेंट है।
गीतहोर्न में रेस्टोरेंट में खाना, फिश एंड चिप्स और फिश सूप। ये B&B का होटल है। यहाँ कुछ घर ऐसे हैं जो कि रेंट पे भी मिल जाते हैं वेकेशन के लिए। चूँकि सर्दी है इसलिए अक्सर फूल और पौधे मुरझाए हुए हैं क्योंकि सर्द इलाका है। टेम्परेचर 7 के करीब है। ये इस पूरे कस्बे का जो है वो कार पार्क है। जिन लोगों के पास गाड़ी है वो यहाँ खड़ी करके फिर जो है अपने घरों तक जाते हैं, क्योंकि इसके अलावा विलेज में कहीं भी जो अंदर गाड़ी जाने का कोई बंदोबस्त नहीं। एक चीज़ पता नहीं मैंने आपको बताई या नहीं बताई, कोई भी यहाँ पे घर जो है 200 साल से उसको ज़्यादा ही हो गया, और अक्सर घर जो है वो 250 साल पुराने हैं, लेकिन देखें कितने मेंटेन है और साफ़ सुथरे और सलीके से कि, और फिर सबसे बड़ी चीज़ है कि साफ़ सुथरा बड़ा बंदोबस्त है। ओके जी, सैर हुई कंप्लीट। प्लीज़ देखने के बाद लाइक कर दीजिएगा और कमेंट्स भी कि आपको अच्छी लगी या बुरी, और इंशाल्लाह फिर किसी नए सफ़र में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।